Welcome guys to module 2, yes, of advanced accounting. Chapter number 5. We are here to learn asset based accounting standards. Here we are going to start unit 1, accounting standard 2, inventory valuation or valuation of inventory. What will be the learning outcomes? Definition of inventory, measurement of inventories, yes or no? What is included in the cost of inventory, exclusion from the cost of inventories, cost formulas, techniques for measurement of cost. अपने को ये सारी चीजें सीखना है, कोई तकलीफ? पक्का? श्योर ना? चलो, विल स्टार्ट नाउ. Introduction. The accounting treatment for inventories is prescribed in AS2 revised valuation of inventories, which provide guidance for determining the value at which inventories are carried in the financial statement until related revenues are recognized. It also provides guidance on the cost formulas that are used to assign cost to inventories and any write down thereof to the net realizable value. कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? पक्का? जाने का आगे? आपको फाउंडेशन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन करके टॉपिक हुआ है, उसमें आपको बेस मिल चुका है, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू कैलकुलेट द कॉस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है. ओके, मैंने आपको पीसीपीएल एक्सप्लेन किया था, प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन, दैट हैज बीन यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट इन दैट चैप्टर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन. यस, उसी का बेस है, उसी का एक्सटेंशन है, बट यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर आपको बताई गई है. ओके चलो, S2 रिवाइज डिफाइंस इन्वेंट्रीज एज असेट हेल्ड for sale in the ordinary course of business or in the process of production for such sale or for consumption in production of goods and services for sale, including maintenance supplies and consumable other than machinery spares, servicing equipment and standby equipment, meeting the definition of property plant and equipment. कोई तकलीफ? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं? पक्का? इन्वेंट्री encompasses goods purchased and held for resale. For example, merchandise goods are purchased by retailer and held for resale. रिटेल काउंटर है, माल खरीदेगा माल बेचेगा. होलसेल काउंटर है, माल खरीदेगा माल बेचेगा. खत्म. और लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रीसेल, वो भी रिटेलिंग कर सकते हो, उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो. सही बात है. Inventories also include finished goods produced, yes, or work in progress, that is WIP, being produced by the enterprise and include material, maintenance, supplies, consumable and loose tools awaiting use in the production process. Inventory do not include spare part, servicing equipment and standby equipment, which meet the definition of property, plant and equipment as per AS10 revised. Property, plant and equipment, yes or no? Such items are accounted for in accordance with accounting standard revised 10, that is PPE, property, plant and equipment. Now following are excluded from scope of AS2. Exclusions. These are excluded from scope of AS2. Yes. पहला, WIP arising under construction contract, because उसके लिए AS7 दिया है. That is the cost of part construction including directly related service contract being covered under AS7. सही बात है ना? Accounting for construction contract. Inventory held for use in the construction, that is example cement lying at the site, however to be covered by AS2. वहां पे जो इन्वेंट्री है, सीमेंट होगा, स्टील होगा, that will be covered under AS2. But WIP of construction will not be calculated as per AS2. That will be calculated as per AS7. कोई तकलीफ? B. ये एक्सक्लूजन की लिस्ट है, 4 आइटम दिए. पहला समझा ना? दूसरा पढ़ो.
WIP arising in ordinary course of business of service provider, that is cost of providing a part of service. For example, for a shipping company, fuel and stores are not consumed at the end of accounting period is inventory, but not cost for voyage in progress. WIP may arise for different other services, software development, consultancy, medical services, merchant banking and so on. उसमें अगर WIP रहा तो that will not treated as inventory as per AS2. Then shares, debenture and other financial instrument held as stock in trade. क्यों? ये AS13 में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में. सही बात है ना? Should be noted that these are excluded from scope of AS13. Sorry. As well, मतलब ये AS13 के स्कोप से भी क्या किया है? Exclude किया है. The current Indian practice is, however, to value them at lower of cost or fair value. मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर तेरे स्टॉक इन ट्रेड है, एक चीज समझो, यहाँ पे मैं जल्दी में पढ़ा, बहुत सिंपल चीज है. अगर मेरा इन्वेस्टमेंट कंपनी है और शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर फाइनेंशियल जो भी है इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेरे क्या है बेटा? इन्वेंट्री. क्या बेटा मैंने बोला? इन्वेस्टमेंट कंपनी. कोई दिक्कत? ये इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या कर रही है? परचेस कर रही है, सेल कर रही है. क्या? शेयर्स, डिबेंचर्स, यस और नो, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स. पक्का? अभी ये मेरे बिजनेस असेट है. कौन से? फिक्स असेट नहीं. दिस इज माय ट्रेडेड एसेट, ट्रेडेड गुड्स, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे ट्रेडिंग आइटम ही शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स है एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो उसको मेरे को कॉस्ट और NRV विच इज लोअर का चीज अप्लाई करना पड़ेगा. प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, agricultural and forest product and mineral oils, ores, gases, to the extent that they are measured at net realizable value in accordance with the well established practices in those industry. Example, where sale is assured under a forward contract or a government guarantee, where a homogeneous market exists and there is negligible risk of failure to sell. मार्केट प्राइस कंसिडर होती है. पक्का? आगे. द टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ बिजनेस. सही बात है ना? अभी अपन ने देखा जो अपने लिए इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए क्या है? ट्रेडेड गुड्स है. जो फ्लैट में खरीद रहा हूं रहने के लिए, वो फ्लैट बिल्डर के लिए क्या है? ट्रेडेड गुड्स है. हाँ है ना? The inventories of a trading concern consist primarily of a product purchased for resale in their existing form. It may also have an inventory of supply such as wrapping paper, cartons and stationery. The inventories of manufacturing concern consist of several type of inventories, that is raw material which will become part of goods to be produced, parts and factory supplies, WIP, partially completed products in a factory, and of course finished products. Yes or no? पक्का मानते हो? श्योर मानते हो? डेफिनेटली ना? चलो कोई दिक्कत नहीं. समझा नहीं सबको? चलो आगे. आपको फाउंडेशन में सिखाया था एक चीज. क्या सिखाया था? अपन ने फाउंडेशन में रिटेल एंड होलसेल जो ट्रेडेड गुड्स है उसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखा था. तब क्या बोला था अपन? इंटरमीडिएट में जाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, WIP, हर एक चीज का जो भी अपन क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते हैं उसका पूरा प्रोसेस सीखेंगे. तो ये AS2 के अंडर अपने को सीखना है. कोई तकलीफ? एट द एंड ऑफ every business year, every business entity needs to ascertain the closing balance of inventory, which comprise of inventory of raw material, WIP, finished goods and miscellaneous item. The cost of closing inventory, example, cost of closing stock of raw material, closing
WIP and closing finished stock is a part of cost incurred in the current accounting period that is carried over to the next accounting period. Likewise, a cost of operating inventory is a part of cost incurred in the previous accounting period and that is brought forward to the current accounting period. सही बात है ना? Costing सीखे हो आप? Yes. Since inventories are assets and assets are resource expected to generate future economic benefit to the enterprise, the cost to be included in the inventory cost are costs that are expected to generate future economic benefit to the enterprise. Such cost must be considered cost of acquisition and cost incurred bringing the asset to their present location of the inventory. कंडीशन एंड लोकेशन मैंने बोला था ना, PCPL, प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट लोकेशन, यस और नो? यहाँ पे दिया है प्रेजेंट लोकेशन एंड देन प्रेजेंट कंडीशन, यस और नो? मैं PCPL बोलता हूँ, यहाँ पे PLPC है, सही बात है. Freight incurred to carry the material to the factory, and second, condition of the material inventory, cost incurred to convert the materials into finished stock. The cost incurred to maintain the inventory storage costs do not generate any extra economic benefit for the enterprise and therefore should not be included in the inventory cost unless those costs are necessary in the production prior to further production stage. समझा क्या? The valuation of inventory is crucial because of its direct impact in measuring P&L for the accounting period. Higher the value of closing inventory, lower is the cost of the goods sold, and hence higher is the profit. The principle of prudence demands that no profit should be anticipated while all foreseeable losses should be recognized. Thus, if net realizable value of inventory is less than the inventory cost, inventory is valued at NRV to reduce the reported profit in anticipated anticipation of loss. समझा क्या? मतलब क्या बेटा? Cost और NRV क्या बेटा? whichever is lower. क्यों? तुमको बोला है ये क्यों करते हैं अपन? प्रूडेंस. यस और नो? प्रूडेंस क्या है? अरे बताओ ना, बोलो. क्या 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 क्या? एग्जैक्टली. कंजर्वेटिज्म जो कंसेप्ट थी वो प्रूडेंस की थी. क्या बेटा? प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नेवर प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड इनकम. मतलब क्या? प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड क्या बेटा? लॉसेस बट नेवर प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड पक्का गेन्स. ये जो अपना कंसेप्ट था, यही कंसेप्ट अपने को यहाँ पे दिया है. On the other hand, if the realizable value of inventory is more than the inventory cost, anticipated profit is ignored and the inventory is valued at cost. In short, inventory is valued at lower of cost and net realizable value. The standard specifies what the cost of inventory should consist of and how the net realizable value is determined. कोई दिक्कत? Now abnormal loss उसमें भी लिया था, सही बात है ना? Abnormal gain and loss are not expected to recur regularly. For a meaningful analysis of enterprise performance, the users of financial statement need to know the amount of such gain or losses included in the current profit and loss. For this reason, instead of taking abnormal gain and losses in the inventory cost, these are shown in the profit and loss statement separately, yes, in a such way that their impact on a current profit and loss can be perceived. Part 1 of Schedule 3 of Companies Act 2013 prescribe the valuation method should be disclosed for the inventory held by the companies. Now measurement of inventory. पहला रॉ मटेरियल, दूसरा फिनिश गुड्स एंड WIP. रॉ मटेरियल क्या बेटा? पक्का? That is if finished goods are sold at or above cost, otherwise at replacement cost. Finished goods and WIP क्या? Lower of the following: cost or NRV.
कॉस्ट में क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंसेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। समझा क्या, क्या बोला बेटा, NRV इज इक्वल टू RV रियलाइजेबल वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, यस और नो, माइनस क्या बेटा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ, पक्का, फर्दर ही है ना वो, नेचुरल है, पक्का। आगे एग्जांपल 1 ले लेते, कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश यूनिट्स एट द एंड ऑफ 21-22 इज 150, ठीक है। The unit can be finished next year by further expenditure 100 रुपये, ठीक है। The finished unit can be sold at 250, ठीक है। 250 का यूनिट है, फर्दर कॉस्ट है 100 रुपीज, ये सुनो, ये 150 आया, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज, अरे ये भी लेस करना पड़ेगा ना 10 रुपया, सही बात है बेटा। सो आया 140। Assume that a partly unit cannot be sold in semi-finished form. NRV is 0 without processing it further. तो 140 है उसका, खत्म। दो कॉस्ट लेस किया ना, एक सेलिंग एक्सपेंसेस एंड फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट, सही बात है ना। आ गया आंसर तुम्हारा। आगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, प्लीज रीड, क्या बेटा, cost of inventories comprises all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventories to their present location, present condition। बोला था ना मैंने, क्या बेटा, purchase, cost of conversion, other cost incurred in bringing the inventories to their PCPL। cost of purchase मालूम है आपको, सही बात है ना, सब तुम्हारा ये फाउंडेशन में हुआ ही है, वही चीज दिया है। परचेस प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सही बात है, अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल by the enterprise from the taxing authorities and other expenditure directly attributed to the acquisition, trade discount, rebate, duty drawback and other similar items are deducted in determining cost of purchase। cost of conversion क्या रहता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, ये सुन लो, हाँ। The cost of conversion include cost directly related to production, example direct labor. They also include overhead, both fixed and variable, that are incurred in converting raw material to the finished goods। कोई तकलीफ, the fixed production overhead should be absorbed systematically to the units of production over normal capacity। Normal capacity is the production the enterprise expect to achieve on an average number of period or season under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from plant maintenance। The actual level of production may be used if it approximates the normal capacity। The amount of fixed production overhead allocated to each unit of production should not be increased as a consequence of low production or idle plant। Unallocated overhead that is under recovery are recognized as an expenses in the period they which they are incurred। In period of abnormal high production, the amount of fixed production overhead allocated to each unit of production decreases so that the inventories are not measured above the cost। Variable production overhead are assigned to each unit of the production on the basis of actual use of production facilities। क्या समझा, बोलो, बोलिए बेटा लोग, read it carefully। पढ़ना है, क्या समझा,
तुझे डायरेक्ट ओवरहेड तो नॉर्मली अपॉर्शन हो ही जाएंगे, सीधा जाएंगे वो, जैसा ना एलोकेट हो जाएंगे। अभी ओवरहेड तो अगर एब्सॉर्ब कर रहा है तो उसके लिए तेरे को कोई बेस पकड़ना पड़ेगा जो नॉर्मल कैपेसिटी को के हिसाब से रहेगा। अभी वो कैपेसिटी के हिसाब से अगर तूने फिक्स ओवरहेड एब्सॉर्प्शन डिसाइड किया पर यूनिट, तो उसी हिसाब से वो कॉस्ट में ऐड होगा। अगर तेरा कैपेसिटी कम यूटिलाइज हुआ है और उसकी वजह से तेरे ओवरहेड अंडर एब्सॉर्ब रहे, तो उसका अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है क्या? नहीं। लेकिन तूने ओवर प्रोडक्शन किया, अभी फिक्स ओवरहेड की वजह से, एब्सॉर्प्शन की वजह से तेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? राइज होगी। तो वो अपने को चलेगा नहीं, अब वो कॉस्ट अपन जा नहीं सकते। तो वो टाइम पे अपन क्या करेंगे, वहां पे बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है, if fixed production or allocated to each unit production is decreased so that they did not measure above the cost। समझा? तो जो फिक्स ओवरहेड तूने एब्सॉर्प्शन रेट पकड़ा है उसको तेरे को क्या करना पड़ेगा? कम। मतलब प्रोडक्शन कम हुआ तो कॉस्ट एब्सॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। अंडर एब्सॉर्प्शन दिखा देंगे, लेकिन अपने को ओवर एब्सॉर्प्शन चलेगा क्या? नहीं। तो वो टाइम अपन एब्सॉर्प्शन का जो भी रेट है अपना फिक्स ओवरहेड का, वही क्या करेंगे बेटा? कम करेंगे, ताकि अपनी कॉस्ट ओवर द एक्चुअल कॉस्ट ना जाए। समझा क्या? एग्जांपल ले लेते, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एफएसएल लिमिटेड हैज अ प्लांट विद अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स, ठीक है? एंड फिक्स ओवरहेड कितना है? 18 लाख, मतलब 18 रुपीज पर यूनिट, पक्का नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे। अभी केस 1, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट, टेंशन ही नहीं। क्यों? 18, हाँ नॉर्मल, मतलब 18 हुआ है, अगर कम हुआ होगा अच्छा है ना? कम नहीं चलेगा। हाँ, क्यों? अरे कम रहा तो चलेगा, क्योंकि एब्सॉर्प्शन कम पे होगा ना, फिर तो कॉस्ट ज्यादा रहेगी और एब्सॉर्प्शन कम, वो थोड़ा चल जाएगा अंडर एब्सॉर्प्शन, ओवर एब्सॉर्प्शन नहीं चलने वाला। सेकंड केस पढ़ो, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 90,000, तो क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, उसका फिक्स अपन ओवर कैप एब्सॉर्प्शन रेट चेंज नहीं करेंगे ना, कम हुआ तो। मैंने क्या बोला? अगर नॉर्मल प्रोडक्शन हुआ तो चेंज नहीं होगा, अगर कम प्रोडक्शन हुआ तो चेंज नहीं होगा, ज्यादा हुआ तो चेंज करना पड़ेगा। सही बात है। तो थर्ड केस देखो, 1.2 लाख यूनिट, सही बात है। फिक्स ओवरहेड्स इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट एंड विल रिमेन कांस्टेंट एट 18 लाख रुपीज। मतलब मेरा खर्चा कितना होने वाला है? 18 लाख, जो फिक्स है। सही बात है ना? लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ अभी? 1.2। तो मेरा जो 18 रुपीज का एब्सॉर्प्शन रेट था वो 15 हो जाएगा। क्यों? 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.2 लाख रुपी, सॉरी 2 लाख यूनिट्स और 1,20,000 यूनिट्स। समझा क्या? देख, पहले केस में नो अंडर एब्सॉर्प्शन, नो ओवर एब्सॉर्प्शन, 18 खर्चा है, उतना एब्सॉर्ब हुआ, खत्म। दूसरे केस में अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ, तो अंडर एब्सॉर्प्शन अपन P&L को भेज देंगे। तो बोलेगा क्यों? अरे 10,000 यूनिट को क्या हुआ? अंडर एब्सॉर्प्शन। अभी 10 के यूनिट से 10,000 यूनिट, सही बात है, इनटू क्या बेटा? इनटू 18 रुपीज। सो कितना हो गया? 1,80,000। ये अंडर एब्सॉर्प्शन हो गया, ये सीधा ट्रांसफर करो कहाँ पे? P&L को। देखो वैसे ही लिखा है क्या? कॉस्ट आ रही है 16.2 और ट्रांसफर कितने है देखो। It therefore it is advisable to include the fixed overhead per unit on normal capacity to actual production। कितना बेटा? 16.2 लाख, and rest 1.8 lakh should be transferred to P&L। कोई तकलीफ? लेकिन नीचे क्या होगा देखो, change in output and will remain constant on 18 lakh, ठीक है? Therefore overhead on actual basis is 15 rupees। Hence by valuing inventory at 18 for each for fixed overhead purpose,
we will be adding the element of cost to the inventory which actually has not been incurred. At 18 rupees per unit, total fixed overhead become 21.6 lakh, whereas actual overhead is 18 lakhs. Therefore, it is advisable to include the fixed overhead on the actual basis. समझा क्या? अगर नॉर्मल रहा टेंशन नहीं, कम रहा भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन जो भी अंडर एब्सॉर्प्शन कहाँ भेजेंगे, P&L को। ओवर एब्सॉर्प्शन अपने को करने का परमिशन नहीं है एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इन AS2। कोई तकलीफ? खत्म। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स क्या रहता है? जॉइंट और बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग होने की वजह से आपको मालूम है, आपको मालूम है जॉइंट प्रोडक्ट मतलब दोनों इक्वल वैल्यू के लगभग। बाय प्रोडक्ट मतलब एक बनता है शुगर और दूसरा बनता है मोलेसिस या बगैस। शुगर फैक्ट्री में मेन प्रोडक्ट क्या है उसका? शुगर। सेकेंडरी प्रोडक्ट कौन से है? बाय प्रोडक्ट्स, मोलेसिस एंड बगैस। हाँ या ना? और इक्वल प्रोडक्ट क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोसेस से दो प्रोडक्ट बाहर आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, लेकिन वो सबके सब क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंस के, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? जॉइंट। एक मेजर इंपॉर्टेंस का और बाकी के थोड़े कम इंपॉर्टेंस के, तो उसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? श्योर? तुमको मालूम है बाय प्रोडक्ट का वैल्यूएशन अगर तुमको मालूम रहा तो वो क्या करते हैं अपन? कॉस्टिंग से पढ़ना, मेरे को नहीं मालूम, देखते हैं चल। In case of joint or by-products, the cost incurred up to the stage of split off should be allocated on rational and consistent basis. सही बात है ना? The basis of allocation may be sale value at split off point. For example, value of product, scrap and waste are usually not material. Value of by-product, scrap and wastage are usually not material. These are therefore valued at NRV. The cost of main product is then valued as joint cost minus NRV of byproduct, scrap और waste। समझा गया? ये सब कॉस्टिंग में अपन ने सीखा है, सीखा ही नहीं, अपन ने इसके डिटेल प्रॉब्लम सॉल्व किए। अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट मतलब जो PCPL के लिए अपने को अदर कॉस्ट की जरूरत है वो। एग्जाम्पल, मैं गुजरात से माल ला रहा हूँ महाराष्ट्र, तो गुजरात से महाराष्ट्र का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो खर्चा किए बिना माल यहाँ तक पहुंचेगा क्या? तो वो खर्चा किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। और वो खर्चा किया इसलिए माल मेरे तक पहुंचा, वहां पे लोडिंग किया मैंने, यहाँ पे आने के बाद अनलोडिंग किया, वो भी एक्सपेंडिचर मैंने बियर किए, आया ना? अगर मैंने आते जाते कुछ क्लियरेंसेस, टैक्सेस विक्सेस पे किए, वो भी किसकी वजह से किए? वो गुड्स की वजह से किए। तो वो सब इंक्लूड होगा कहाँ पे? PCPL में एज अदर कॉस्ट। फिर मैंने शोरूम में बेचने को रख दिया, खत्म। उसके बाद शोरूम का रेंट आया, शोरूम का रेंट आएगा PCPL में? नहीं। शोरूम का इंश्योरेंस किया, वो आएगा क्या PCPL में? ना। समझा क्या? ग्रेट। शोरूम में मैं सैलरी दे रहा मैनेजर को बेचने की, वो आएगा क्या PCPL में? नहीं। दिस में बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री प्रोवाइडेड they are incurred to bring the inventory to their present location and condition. Cost of design, for example, for a custom made unit may be taken as a part of inventory cost. सही बात है ना? क्योंकि उसके बिना वो इन्वेंट्री बनती नहीं थी। Interest and other borrowing costs are usually considered as not relating to bringing the inventories to their PCPL condition. सही बात है ना? The costs are therefore not usually included in the cost of inventory. Interest and other borrowing costs, however, are taken as a part of inventory cost, where the inventory necessarily takes substantial period of time for getting ready for intended sale. For example of such inventory is wine. वाइन बनाने के लिए अगर तुमने लोन उठाया तो उसको अगर 1 साल की मैच्योरिटी है, तब इन्वेंट्री का जो इंटरेस्ट है लोन का, बोरिंग कॉस्ट का, वो अपन क्या करेंगे बेटा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज CC का ब्याज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होगा। समझा क्या? ग्रेट। आगे, द स्टैंडर्ड इज साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ amortization of intangibles for ascertaining the inventory cost. It nevertheless appears
that the amortization of intangible related to production, example, patent rights of production or copyright for a publisher should be taken as a part of inventory cost. समझा? आगे, exchange difference are not taken as in inventory cost. देख, conversion cost, पहला फैक्ट्री ओवरहेड जो अपन ने अब तक सीखा, डायरेक्ट लेबर और जॉइंट कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बेटा? फिक्स, वेरिएबल. कोई तकलीफ? फिक्स में क्या बेटा? नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन. दो चीजें अपन यूज करते. नॉर्मल कैपेसिटी कम रहा तो टेंशन नहीं लेने का, नॉर्मल कैपेसिटी रहा तो टेंशन नहीं लेने का. नॉर्मल कैपेसिटी के आगे निकल गया तो एक्चुअल कॉस्ट. वेरिएबल एट एक्चुअल प्रोडक्शन. सही बात है ना? जॉइंट कॉस्ट में जॉइंट प्रोडक्ट रहा और बाय प्रोडक्ट रहा. जॉइंट प्रोडक्ट रहा तो सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल वैल्यू एट कंप्लीशन. मतलब अगर वहां पे बेच सकते तो वो बेच पकड़ेंगे, अगर वहां पे नहीं बेच सकते उसको मार्केट में तो कंप्लीशन के बाद की. बाय प्रोडक्ट में क्या बेटा? मेजर्ड एट एनआरवी. दिस एनआरवी इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन और जॉइंट प्रोडक्ट. समझा क्या? पक्का? खत्म. एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. क्या कह दिया बेटा? एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर, मतलब एबनॉर्मल लॉस. स्टोरेज कॉस्ट बोला मैंने, अनलेस द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स स्टोरेज. थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड that do not contribute to bringing the inventories to the PCPL and selling and distribution cost. ये कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे. आगे कॉस्ट फॉर्मूला क्या बेटा? व्हाट इज द कॉस्ट फॉर्मूला? फीफो और वेटेड एवरेज. क्या बेटा? वो टाइम पे ही बोला था मैंने, दो ही चलते. कहा क्या? फीफो और वेटेड एवरेज. चेक करो. In all other cases, cost of inventory should be determined by a FIFO or weighted average cost formula. सही बात है क्या नहीं? अदरवाइज जो तुम्हारे को सब डेटा दिया है उससे तुम तुम्हारी कॉस्ट निकालो. कोई तकलीफ? पढ़ सकते हो ना? अदर टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट. अदर टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट मतलब दो टेक्निक्स दिए, ए एंड बी. पढ़ो. या आप बताने वाले मेरे को? अरे एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड याद आया क्या? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जीपी मार्जिन लेस करो और तुम्हारी कॉस्ट निकालो. आया ना? अगर सेल वैल्यू दी है तुमको इन्वेंट्री की और तुम्हारा जीपी मार्जिन निकल रहा है तो तुम क्या करोगे? जीपी मार्जिन लेस करोगे सेल वैल्यू में से. सो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. और पहले इसमें क्या बताया है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. हाँ, अगर वो प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन पे है तो अपन उसको कंसिडर करेंगे, अगर वो प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन पे नहीं है तो अपने को वो नहीं ले सकते. ओके, एग्जाम्पल लो अभी. चलो पढ़ो.
trader purchased certain articles for 85,000. He sold some articles for 1,05,000. Average per unit cost markup 25%. ठीक है. Opening stock of inventory 15,000. आपको मालूम है अभी क्या करना है? कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल चीज है. देख, अपने पास क्या है बेटा? 85,000 का परचेस है. सही बात है. ही सोल्ड सम आर्टिकल फॉर 1,05,000. कॉस्ट ग्रॉस एवरेज क्या बेटा? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्कअप इज 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट मतलब 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस. सही बात है. देखो, कॉस्ट 1/4 अगर रहा तो सेलिंग प्राइस की कितना रहेगा? 1/5. क्या बेटा? प्रॉफिट आया ना. तो अपने को बोला कॉस्ट के 1/4, सेलिंग प्राइस के 1/5. अपनी सेलिंग प्राइस कितनी डार्लिंग? हाँ, तो 1/5 21,000. तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी? 84. पक्का? सो 84 हो गई. 84 हुई है. सॉरी, कितनी हुई है? बोलना है. हम्म. अरे सही है ना. इतना टेंशन काहे को ले रहे? मेरा प्रॉफिट कितना है? देख, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 5. सो व्हाट विल बी माय प्रॉफिट? तुम्हारे कंसेप्ट पे भरोसा नहीं कर तुमको. 21,000. यस और नो? मतलब कॉस्ट कितनी है उसकी? 1,05,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4. यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना. तो ये कितना हुआ? 84,000. मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी थी? देख, मेरा परचेस था 85,000 का. कोई दिक्कत? मेरा ओपनिंग स्टॉक था कितना था? 15,000 का. कॉस्ट पे ये थे. सही याद है. सो मेरा टोटल कितना हुआ इन हैंड? 1 लाख. अरे हाँ या ना? कितना हुआ? 1 लाख. 1 लाख में से अवेलेबल कॉस्ट, यस और नो? उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 84,000. तुमने अभी निकाला ना. सो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी आई? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या आया? 16,000. सही बात है क्या? देखो, खत्म. इसने सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट करके किया है, मैंने कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट करके किया है. आया ना. 85 प्लस 15, 1 लाख का मेरा क्या है? टोटल कॉस्ट. वो बेचूंगा कितने में मैं? 1,15,000 को 25% ऐड करके. मैंने कितना बेचा? 1,5. मतलब सेलिंग प्राइस पे कितना बचा माल मेरा? 20,000 का. उसमें 1/5 क्या है मेरा? प्रॉफिट. मतलब 4,000. मेरी कॉस्ट कितनी आई? 16,000. इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया, मैंने मेरे तरीके से सॉल्व किया. कोई तकलीफ? आगे. एस्टिमेट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, करो, पढ़ो. वो पढ़ के समझा? कुछ नॉर्मल चीज दी है बस. तेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस तरीके से निकाल. उसमें तू क्या कंसिडर करेगा? करंट प्राइस फ्लक्चुएशन, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन. ये सुन लो. उसके बाद कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तुमको तो मालूम है ना, उनका कंपेयर करना है. चलो देखो, आइटम 1, कॉस्ट 50,000, एनआरवी 45, इन्वेंट्री वैल्यू 45, कॉस्ट 20,
NRV 24, inventory value 20, which year is lower. NRV of material held for use or disposal. Please read. Material and other supply held for use in the production of inventory are not written down below cost if the selling price of finished product containing the material exceed the cost of the finished product. The reason is, as long as these conditions hold, the material realizes more than its cost as shown below. देखते review of NRV at each balance sheet date. An assessment is to be made of NRV as at each balance sheet date. कोई दिक्कत नहीं. Now डिस्क्लोजर्स में क्या दिया है? कुछ नहीं, नॉर्मल चीज अपने को देना पड़ेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in measuring inventories including cost formula used. Second, the total carrying amount of inventory together with classification appropriate to the enterprise. Now, information about the carrying amount held in different classification of inventory and the extent of changes in these assets is useful to the financial statement of user. That is some classification of inventory. क्या बेटा? Raw material and its component, WIP, finished goods, stock in trade in respect of goods acquired for trading, stores and spare, loose tools and other specify the nature. ये तरीके से तुमको डिस्क्लोजर देना बनता है. कोई तकलीफ? खत्म. प्रॉब्लम लेने का अभी सब प्रॉब्लम है. ये 5 प्रॉब्लम खत्म करेंगे, 4 प्रॉब्लम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. यस. इलस्ट्रेशन 1. द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट ABC which are neither similar nor interchangeable. मतलब पूरे अलग अलग है. At the time of closing of its account for year 21-22, the historical cost and NRV of this item of closing stock are determined as follow. Historical 40, 28, 28 लेना पड़ेगा. 32, 32 कोई भी लो, 32 लेंगे. यस और नो? 16, 24 16 लो. कोई दिक्कत? खत्म. वही चीज दिया है. 28, 32, 16. पक्का डार्लिंग. Illustration 2. X company limited purchased goods at the cost of 40 lakhs in October 2021 till March 2022. 75% of the stock were sold. ठीक है, 40 लाख में से 30 लाख का माल बेच दिया. सही बात है ना बेटा? The company wants to disclose closing stock at 10 lakh rupees at cost. मतलब बोल रहे हो. The expected sale value is 11 lakh. Commission is 10% on sales. It's payable to agent. मतलब एक 10 चले गए. साले ये तो 990 हो गया. तो अपने को 990 को दिखाना पड़ेगा ना. कॉस्ट और एनआरवी में अपन क्या लेस करते हैं? सेलिंग प्राइस, सेलिंग का कमीशन, कॉस्ट. यस और नो? पढ़ाना अपन ने. तो 10% कम किया 11 लाख में से. तो नेट रियलाइजेबल, देख रियलाइजेबल वैल्यू है 11 लाख. ध्यान रखो, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 11 लाख. उसमें से लेस क्या करेंगे अपन? सेल्स एक्सपेंसेस. कितने बेटा? 10% से 1,10,000. सो एनआरवी कितना आया बेटा उसका? 9,90,000. कॉस्ट कितना है बेटा तेरा? 10 लाख. कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर. सो तू क्या कंसिडर करेगा बेटा यहाँ पे? 9,90,000. खत्म. ओके डन. देख लो आंसर वही रहेगा. कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर लिखो और ये वर्किंग दिखाओ. Illustration 3. In a production process, normal wastage is 5% of input. ठीक है, 5,000 metric ton input were put in the process with a wastage of 300 metric ton. मतलब 6% हुआ है. आया ना? अरे 5% से 250 होना चाहिए था ना. तो 50. Cost of empty of input is 1,000. The entire quantity of wastage is on stock at the year end. State with the reference to accounting standard how you will value the inventory in this case. कैसे करेगा बेटा तू वैल्यू?
अरे नॉर्मल लॉस इज borne बाय द गुड यूनिट प्रोड्यूस। कोई तकलीफ है क्या? पक्का। एक चीज याद रखो, मैं बताता। अपने पास कितना माल है? 5,000। उसमें नॉर्मल लॉस कितना है बेटा? @5%, ठीक है ना? मतलब 250 MT। MT मतलब मेरे हाथ में माल कितना बनना चाहिए था? 4,750 MT। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी डार्लिंग? नॉर्मल लॉस का कॉस्टिंग जीरो रहता। यस। सो टोटल कॉस्ट 5,000 इंटू 1,000। यस। 2 3 मतलब यही 50 लाख रुपीज। कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? सो नॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग क्या लिया मैंने? नील। सो मेरी टोटल कॉस्टिंग आई 50 लाख कितने चीजों के लिए? 4,750 मेट्रिक टन के लिए। लो कैलसी पे 50 लाख डिवाइडेड बाय 4750 कितना? देख पर MT कॉस्ट निकालता हूं मैं। 50 लाख डिवाइडेड बाय 4750 MT। बोलो डार्लिंग कितना आया? 1052.63 आया ना? पक्का? ये आया पर MT। अभी तेरे को मालूम है बाइफरकेशन? बाइफरकेशन क्या? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। 4750 में दो बाइफरकेशन होंगे। एक 50 अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल स्टॉक 4700। ओके। सो abnormal लॉस 50 इंटू 1052.63 बोलो। और कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक कितना आया बेटा? वो बोलना है। 52,632। सही बात है कि नहीं? ये आया तेरा एबनॉर्मल लॉस का कीमत। ये सेपरेट बताना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा? 4,700 इंटू 1052.63। बताइए ये आया 49,47,368। कोई तकलीफ? हो गया आंसर। समझा क्या? फोर्थ, ये तुम्हारे फाउंडेशन से आसान है। आया ना? You are required to value the inventory per kg of finished goods consisting of material 200, labor 40, variable overhead 20 मतलब बेटा 260, fixed production charge for the year on normal working capacity 2 लाख kg, ठीक है, is 20 लाख। बेटा 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 lakhs कितना आएगा? 10 रुपये। 4,000 kgs of finished goods are in stock at the year end। ठीक है ना? कोई नहीं, मतलब नहीं। 10 रुपए ऐड करो उसमें। 200 प्लस 40 प्लस 20 इतने के कितने हो बेटा? 260। और ये 10 रुपए ऐड किया मतलब 270। 270 इंटू 4,000 जो भी आएगा। खत्म। ये देखो है वैल्यू ओवर। कोई तकलीफ? अभी टेस्ट योर नॉलेज है, नीचे पढ़ लोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है 6 7 8। क्या बात कर रहा है? सच में? श्योर? नॉर्मल लॉस आप नॉर्मल लॉस निकाल सकते हैं ना? श्योर? ये अच्छे से करो। कोई जरूरत पड़ी, डिफिकल्टी आई, यू कैन आस्क मी। अगले लेक्चर में अपना अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेंगे। कौन सा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये भी क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पक्का? सो ये अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर को विल टेक PPE। डन? चलो थैंक यू।